તાજેતરમાં લોકસભામાં આપેલા ભાષણમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ સરકારની ભારતીય બંધારણ અને તેના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો પ્રત્યેની અડગ પ્રતિબદ્ધતાને રેખાંકિત કરી. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે બંધારણ ભારતના લોકતંત્ર અને એકતાનું પાયાનું પથ્થર છે અને એનડીએના પ્રયાસોને તેના આત્માને જાળવવા માટે હાઇલાઇટ કર્યા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કોંગ્રેસ પાર્ટીની ઐતિહાસિક બંધારણીય સિદ્ધાંતોના ઉલ્લંઘનો માટે ટીકા કરવામાં કોઈ પણ કસર છોડ્યા વિના તેમણે કેટલાક ઉદાહરણો આપ્યા જ્યાં કોંગ્રેસે રાજકીય લાભ માટે લોકતંત્રની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. 2008માં કેશ ફોર વોટ કૌભાંડનું એક નોંધપાત્ર ઉદાહરણ હતું, જ્યાં યુનાઇટેડ પ્રોગ્રેસિવ એલાયન્સના સભ્યો પર વિશ્વાસ મત દરમિયાન તેમના સમર્થનને સુરક્ષિત કરવા માટે વિપક્ષના સાંસદોને લાંચ આપવાનો આરોપ મુકાયો. નરેન્દ્ર મોદીએ દલીલ કરી કે આવા કૃત્યો લોકતંત્રની પવિત્રતાને નુકસાન પહોંચાડે છે. તેમણે 1975માં તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા લાગુ કરાયેલા ઇમરજન્સીનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં નાગરિક સ્વાતંત્ર્યને સ્થગિત કરવામાં આવી અને લોકતંત્રના અધિકારોને ઘટાડવામાં આવ્યા. નરેન્દ્ર મોદીએ દાવો કર્યો કે આ કૃત્યો કોંગ્રેસના એક નમૂનાને દર્શાવે છે, જ્યાં કોંગ્રેસે બંધારણીય અખંડિતતાની ઉપર રાજકીય સત્તાને પ્રાથમિકતા આપી. લોકતંત્ર પ્રત્યે એનડીએની પ્રતિબદ્ધતા વિપરીત રીતે જણાવતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એનડીએની લોકતંત્રના મૂલ્યો જાળવવાની પ્રતિબદ્ધતાને હાઇલાઇટ કરી. તેમણે 1996માં અટલ બિહારી વાજપેયીની સિદ્ધાંતવાદી રાજીનામાની યાદ અપાવી, જ્યારે લોકસભામાં બહુમતી મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયા પછી તેમણે પ્રધાનમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું. નરેન્દ્ર મોદીએ દલીલ કરી કે આ કૃત્ય બીજેપીના લોકતંત્રના નિયમો અને પ્રક્રિયાઓ પ્રત્યેના આદરને દર્શાવે છે. નરેન્દ્ર મોદીએ એનડીએ સરકાર દ્વારા બંધારણને મજબૂત બનાવવા અને સમાવિષ્ટ શાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રજૂ કરેલા કેટલાક મહત્વપૂર્ણ સુધારાઓ અને નીતિઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમાં માલ અને સેવા કરનો સમાવેશ થાય છે, જે એક એકીકૃત રાષ્ટ્રીય બજાર બનાવવાનો હેતુ ધરાવે છે, અને કલમ 370નો રદ કરવો, જે જમ્મુ અને કાશ્મીરને ભારતના બાકીના ભાગ સાથે વધુ નજીકથી એકીકૃત કરે છે. મજબૂત લોકતંત્ર માટેની દ્રષ્ટિ અંતર્ગત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વધુ મજબૂત અને જીવંત લોકતંત્ર માટેની પોતાની દ્રષ્ટિ પુનરાવર્તિત કરી, જ્યાં બંધારણ તમામ શાસન માટે માર્ગદર્શક પ્રકાશ તરીકે કાર્ય કરે છે. તેમણે બંધારણીય મૂલ્યો જાળવવા અને વધુ સમાવિષ્ટ અને સમાન સમાજ તરફ કામ કરવા માટે સામૂહિક પ્રયાસો માટે આહ્વાન કર્યું. નરેન્દ્ર મોદીએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે એનડીએ સરકાર દરેક નાગરિકને, ભલે તે કોઈપણ પૃષ્ઠભૂમિનો હોય, બંધારણ દ્વારા ગેરંટી આપેલા અધિકારો અને સ્વાતંત્ર્યનો આનંદ માણે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આદરણીય સભાપતિજી, तो आपके सदस्यों ने क्या क्या बोला था ठीक नहीं है. आप जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो सदन की मर्यादा को रखो, अच्छी परंपरा को बनाओ. संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान के स्पिरिट को तहस नहस करना, ये कांग्रेस की रगों में रहा है. हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है. और ये शब्दों में नहीं है. जब जब हमें कसौटी पर कसा गया है, हम तब करके निकले हुए लोग हैं. मैं उदाहरण देना चाहता हूं. 1996 में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई. सबसे बड़ा दल था और राष्ट्रपति जी ने संविधान की भावना तहत सबसे बड़े दल को प्रधानमंत्री के शपथ के लिए बुलाया और 13 दिन सरकार चली. अगर हमें संविधान के स्पिरिट के प्रति हमारा भावना न होती तो हम भी ये बांटो, वो बांटो, ये दे दो, वो दे दो, इसको डिप्टी पीएम बना दो, इसको ढिकना बना दो, हम भी सत्ता सुख भोग सकते थे. लेकिन अटल जी ने सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना,
संविधान के सम्मान का रास्ता चुना और 13 दिन के बाद इस्तीफा देना स्वीकार कर दिया। ये ऊंचाई है हमारी लोकतंत्र की। इतना ही नहीं, 1998 में एनडीए की सरकार थी, सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं तो कोई नहीं, ये जो एक परिवार का खेल चला है, अटल जी की सरकार को स्थिर करने के लिए खेल चले गए। वोट हुआ, खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है। और दूसरी तरफ अदालत ने भी जिस पर थप्पा मार दिया, कैश फॉर वोट का कांड, एक लघुमती सरकार को बचाने के लिए संसद में नोटों के ढेर साक्ष्य के रूप में रखे गए, असंवैधानिक तरीका। सरकार बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की भावना को बाजार बना दिया गया, वोट खरीदे गए। आदरणीय सभापति जी, 90 के दशक में कई सांसदों को रिश्वत देने का पाप, यह संविधान की भावना थी कि 140 करोड़ वासियों के मन में जो लोकतंत्र पनपा है, उस लोकतंत्र के साथ यह खिलवाड़। कांग्रेस के लिए सत्ता सुख, सत्ता की भूख, यही एकमात्र कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का वर्तमान है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद एनडीए को सेवा का मौका मिला, संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। ये पुरानी जो बीमारियों थी, उस बीमारी से मुक्ति का हमने एक अभियान चलाया। बीते 10 साल यहां से पूछा गया, हमने भी संविधान संशोधन किए। जी हां, हमने भी संविधान संशोधन किए हैं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किए हैं। हमने संविधान संशोधन किया, क्यों किया? इस देश का ओबीसी समाज तीन दशक से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहा है। ओबीसी के सम्मान के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने संविधान संशोधन किया है। हमें गर्व है ये करने का। समाज के दबे कुचले लोगों को उनके साथ खड़े होना, ये हम अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए संविधान संशोधन किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था, वो किसी भी जाति में क्यों न जन्मा हो, लेकिन गरीबी के कारण अवसरों को वो पा नहीं सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था, और इसलिए उसने असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी और सबकी मांग रहती थी, कोई निर्णय नहीं करता था। हमने संविधान संशोधन किया,
सामान्य जन के गरीब परिवार के 10% आरक्षण का किया। और ये पहला आरक्षण का संशोधन था। देश में कोई विरोध का स्वर नहीं उठा, हर किसी ने प्यार से उसको स्वीकार किया। संसद ने भी सहमति के साथ पारित किया, क्योंकि समाज की एकता की उसमें ताकत पड़ी थी, संविधान की भावनाओं का भाव पड़ा था, सबने सहयोग किया था, तब जाकर के हुआ था। आदरणीय सभापति जी हाँ, हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान में संशोधन किया महिलाओं को शक्ति देने के लिए। संसद और विधानसभा में, और संसद का पुराना भवन गवाह है, जब देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ रहा था और कानून यानी बिल पेश हो रहा था, तब उन्हीं का एक साथी दल वेल में आता है, कागज छीन लेता है, फाड़ देता है और सदन स्थगित हो जाता है और 40 साल तक विषय लटका रहता है। और वो आज उनके मार्गदर्शक है, जिन्होंने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया, वो उनके मार्गदर्शक है। आदरणीय सभापति जी, हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब आंबेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए, और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, हमने 370 का हटाने के लिए संशोधन किया। हमने ऐसे कानून भी बनाए। जब देश का विभाजन हुआ, महात्मा गांधी समेत देश के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पड़ोस के जो हमारे देश हैं, जहां जो माइनॉरिटीज है, वो जब भी संकट में आएगी तो उनकी चिंता ये देश करेगा। गांधी जी ने का वचन था, जो उनके नाम पर सत्ता पर चढ़ जाते थे उन्होंने तो पूरा नहीं किया, हमने सीएए ला करके उसको पूरा किया। वो कानून हमने लाया, हमने किया है, और गर्व के साथ आज भी हम उसको ओन कर रहे हैं, मुंह नहीं छुपाते हैं, क्योंकि देश के संविधान की भावना के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हमने जो संविधान संशोधन किए हैं वो पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए किए, और हमने एक उज्जवल भविष्य का रास्ता मजबूत करने के लिए किए हैं। और समय बताएगा, समय की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे, क्योंकि वो सत्ता स्वार्थ के लिए किया गया पाप नहीं है, हमने देश हित में किया हुआ पुण्य है।